Hello class. So today we will start our next session 9, that is maintain workplace safety. So first of all, let us talk about the safety. See, बेटे safety means the state of being safe. जब आप safe word आता है, जब आप safe feel करते हैं उसको safety बोला जाता है. And workplace means to the working environment at an organization, जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं, एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वर्क प्लेस कहलाएगा. तो इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट द सेफ्टी, हाउ टू मेंटेन द सेफ्टी एट द वर्क प्लेस. सी, every organization must follow a standard set of rules and procedure. These rules must be stated and displayed clearly at important areas, and all the employees must be given a demonstration and training to follow safety rules. अब सेफ्टी, जब भी हमें कोई भी सेफ्टी अगर मेंटेन करनी है वर्क प्लेस पर, तो बेटे उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, और वो रूल्स और रेगुलेशंस हर इम्पॉर्टेंट एरिया पे डिस्प्ले होनी चाहिए. जैसे आपने देखा है आपके स्कूल में या हॉस्पिटल्स वगैरह आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे बड़े बड़े नोटिस लगे रहते हैं सेफ्टी को लेकर, या फायर को लेकर, किसी भी टाइप की सेफ्टी को लेकर नोटिस लगे रहते हैं वहाँ पर. So workplace safety is very important for each and every employee in the industry. This keeps the efficiency and productivity of the employees. ठीक है, तो there are some rules to follow at workplace. First one is fire safety, then falls and slip, then electrical safety and use of first aid. So basically there are basic safety rules. But every organization must follow a standard set of rules and procedure, and safety training is necessary so that the employee will know the importance of safety and how to practice safety at workplace. So there are basic safety rules in an organization. First one is, if we talk about the first one is maintenance of safety equipments. That means the safety equipment must be taken care of regularly to ensure its proper availability and functioning at the time of emergency. जब भी कुछ फायर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो है या और भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं. उसके लिए ज़रूरी है बेटे कि उस सब चीज़ों की, उन इक्विपमेंट्स की से मेंटेनेंस हो डेली बेसिस पर. तो this one is the first rule to maintain the fire safety at an organization. Second one is install fire detection system. That means an organization must have fire detection system installed in the premises, and some alarm may trigger automatically, or it can either be automatic or manual. तो आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे फायर अलार्म रहता है. जैसे ही कुछ आग लगती है एकदम अलार्म बजने लगता है, सो दैट सब लोग को पता लग जाए एकदम कि हाँ कहीं पर आग लगी है, एंड दे कैन सेफली वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस. तो इंस्टॉलेशन ऑफ द फायर डिटेक्शन सिस्टम इज़ वेरी नेसेसरी. देन थर्ड वन इज़ बेटे, conduct a regular fire drills. That means it is one of the most important part of fire safety training to conduct the regular fire drills, as it helps in making the employees get familiar with the evacuation procedure in case of fire. Regular drills, इसमें क्या होता है, जो फायर आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी चलाने की ट्रेनिंग होती है, प्लस ये होता है कि अगर कभी आग लग जाती है तो लोग कैसे निकलेंगे वहाँ से बाहर, जो एम्प्लॉयज़ है वो बाहर कैसे निकलेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट द रेगुलर फायर ड्रिल. The next one is the fire evacuation plan. That means prepare an emergency fire escape plan, and employees must know the detailed step to be taken when they discover any fire, and they should know the evacuation procedures. जैसे यहाँ पे एक पूरा आपका प्लान बना हुआ है कि अगर कहीं पर आग लग जाती है तो लोगों को कहाँ से निकलना है, कहाँ से हटना है. आप देखिए प्राइमरी प्लेस एंड सेकेंडरी एग्जिट, हर पूरा प्लान पता होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, सो दैट अगर ऐसा कुछ उन्हें लगता है कि फ़ायर कहीं पर भी उन्हें डिस्कवर होती है तो वो लोग ईज़िली एस्केप कर जाएं उस जगह से. दीज आर द रूल्स ऑफ बेसिक फायर सेफ्टी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स. फॉल एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आप गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. वो भी एक तरीके से एक्सीडेंट होता है, और इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटे, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. दैट इज़ गुड हाउस कीपिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट फॉल्स ड्यू टू स्लिप एंड ट्रिप्स.
जैसे कि कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री, क्लीन रखना चाहिए आपको, जो जहाँ से आप आ जा रहे हैं, आपको आना जाना लगा रहता है वहाँ से वो क्लीन होना चाहिए। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, रिसीव लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वहाँ पे, प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए। नॉन स्लिपरी आपको फुटवेयर पहनने चाहिए। फ्लोर आपके क्लीन और ड्राई होना चाहिए। ऑयल स्पिल डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन्ड, अगर कहीं पर किसी तरह से ऑयल गिर गया है या वहाँ पर डस्ट हो रही है वो इमीडिएटली क्लीन हो जाना चाहिए, सो दैट वहाँ पर कोई फिसले ना और गिरे ना। सो बेटा सी, दीज आर द बेसिक रूल्स। डोंट रश, कॉर्नर्स की तरफ एकदम नहीं भागना चाहिए, डोर की तरफ एकदम नहीं भागना चाहिए, या फिर बहुत पतले रास्ते होते हैं वहाँ पे एकदम भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अटक के गिरने का बहुत डर होता है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द शूज़, टाई शूज़ लेसेस बंदे होने चाहिए आपके शू लेसेस। जो आपका शूज़ का सोल होता है वो नॉन स्लिपरी होना चाहिए। टो का एरिया जो है वो आपका क्लोज होना चाहिए, वहाँ से कहीं पर भी आपका, क्योंकि अगर आपका कहीं भी टो वगैरह थोड़ा भी निकला होगा और आपकी किसी चीज़ में टक्कर हो जाती है तो आपके चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन कीप द फ्लोर क्लीन एंड ड्राई एंड वॉच कि कहीं पर केबल्स तो नहीं है, आप अटक के ना गिर जाएं। लाइटनिंग, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग ना हो कहीं पर जिससे कि आपको कुछ करंट वगैरह लगे। ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, मीन्स आप इतना हैवी लोड ना लेके जा रहे हो कि आपको आगे का रास्ता ना दिख रहा हो। और अनइवन सर्फेसिस जहाँ होती है वहाँ पर हमेशा देख कर चलना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द फॉल एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स। Now the next one is electrical safety rules. Though use of electrical equipment has helped in all our routine tasks, whether it is at home or office, but if precautions and safety measures are not taken daily, then they might be a cause of threat to our lives. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर हम सेफ्टी मेजर्स नहीं लेंगे या प्रिकॉशंस नहीं लेंगे डेली लाइफ में तो ये हमारी लाइफ को थ्रेट भी हो सकता है। हमें अप्रोप्रिएट मेजर्स रखने चाहिए अपने सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वर्क प्लेस पर, या फिर अगर हम घर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी। सो व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, सी, डोंट ओवरलोड आउटलेट्स, जो आपके प्लग्स होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, उनको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। और जो अप्लाइंसेस यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको अनप्लग करके रखना चाहिए। चूज़ आउटलेट्स ओवर एक्सटेंशन कॉर्ड्स की जगह आउटलेट्स हमें यूज़ करना चाहिए। ग्राउंड फॉल सर्किट इंटरप्रेटर्स यूज़ करने चाहिए। और जो कॉर्ड्स होती हैं आपके वो बेटे उनको देखना चाहिए कहीं से फटी हुई तो नहीं है या जली हुई तो नहीं है। हाई ट्रैफिक एरियाज़ को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे हमें इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए दो अप्रूव्ड हो, नेशन टेस्टिंग लेबोरेटरीज से यूएल सर्टिफाइड हो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है आपकी किसी भी रिलेटेड कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, तो एक हाई क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन हमें हायर करना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स अगर हमें कहीं दिख रहा है, कहीं से थोड़ा स्मोक निकल रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उससे हमें जैसे ही पता लगे हम उसको सही करवा लेना चाहिए। एंड हीट emanating equipment should be kept away from the electrical equipments. These are the basic safety rules for the electricity. Means these are the electrical safety rules, basic electrical safety rules. Now the next is use of first aid. See, first aid is the immediate assistance given to any person suffering from any minor or major injury or illness. इट प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग और टू प्रमोट रिकवरी। अब फर्स्ट एड क्या होता है बेटे? जो सबसे पहला एड दिया जाता है जब किसी को माइनर प्रॉब्लम हो या मेजर इलनेस हो या इंजरी हो, तो इससे क्या होता है कि इससे जो पेशेंट होता है या जो पर्सन होता है जिसको चोट लगी, इंजरी हुई है या फिर बीमारी हुई है, उसकी कंडीशन वर्स्ट होने से बच जाती है और रिकवरी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्हाट आर द सम बेसिक रूल्स ऑफ फर्स्ट एड? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट पैनिक, घबराना नहीं चाहिए, काम और कंपोज रहना चाहिए। एंड इंजर्ड पर्सन को एश्योर करना चाहिए कि यू विल बी ऑल राइट, और घबराने की कोई बात नहीं है। एंड सेकेंड वन इज़ योर ओन सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले बेटे अपनी खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कुछ चीज़ें यूज़ करनी नहीं आती हैं, आप तभी भी यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको ही प्रॉब्लम हो जाए कुछ, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। थर्ड वन से इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। रिस्पॉन्स आपका इमरजेंसी के लिए जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर तरह से होना चाहिए। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और इंजरी।
मीन्स आप बेटे इमोबिलाइज तो करिए पर्सन को फ्रॉम नेक, हेड और बैक पेन, बट अगर बैक इंजरी है तो हमें मूव नहीं करना चाहिए पर्सन को. एंड स्टॉपिंग एनी ब्लीडिंग. अगर आपको लग रहा है कि जो पर्सन है उसको कहीं से वो ब्लीड कर रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए. दीज आर द बेसिक सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी फर्स्ट एड rules when we have to use the first aid. So this is your session 9, maintain workplace safety. In the next class we will talk about the session 10, that is prevent accidents and emergencies. Thank you so much.